Good morning students, welcome to your EVS class. How are you students? I hope you are fine. Students, first of all we will discuss our password, that is external. What is external? What is the meaning of this word? External का हिंदी में अर्थ है बाहरी. External can be anything. It can be the external wall of your house. It can be the external paint. It can be external organs. Yesterday we discussed external organs. So you already know about external word. When we were discussing about external organs, I told you that external organs are those organs that can be seen. Now what we are going to do in our EVS class, as you know that we are on our chapter number 5, how our body works. In this chapter we are discussing about organs, external and internal. We will learn how our body works. We will learn how bones and muscles work together to make our body move, run and play. So, yesterday we started our chapter. We discussed about external organs. Now today in our EVS class we will discuss about some internal organs. We will also discuss about the importance of external as well as internal organs. So let's start. Open your book at page number 21, students. Let's start the reading of page number 21. Yes students, this is page number 21 in our EVS book. As you know that we are on our chapter number 5, how our body works. So students, yesterday we started our chapter. We also read page number 20 yesterday. Then we came to know that what are organs. We know that organs are parts of our body. Organs हमारी शरीर के ही अंग हैं. We came to know about external organs. So external organs are those that can be seen. External organs या बाहरी अंग वो होते हैं जो हम देख सकते हैं. You already know about external organs. हम पहले से ही external organs के बारे में जानते हैं. Picture was given to us on page number 20. In that picture we had to label some external organs. So we did that work also yesterday. So now today we will discuss about internal organs. So what are internal organs? Internal organs वो होते हैं students जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, हम उनको देख नहीं सकते. One important thing you want to know that external and internal organs work together. So internal organs इसका हिंदी में अर्थ है आंतरिक अंग. The heart, the brain, the stomach and the lungs are important internal organs. हमारा हृदय या दिल, हमारा दिमाग, हमारा पेट और हमारे फेफड़े ये बहुत महत्वपूर्ण आंतरिक अंग हैं. They are inside our body. ये हमारे शरीर के अंदर हैं. हम इनको देख नहीं सकते बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. Here you can see this is the pic of brain. ये ऐसा है brain. Here you can see. First of all we will talk about brain. Brain का हिंदी में अर्थ है दिमाग, मस्तिष्क भी बोलते हैं. The brain is inside our head. ये हमारे सर के अंदर है. It helps us to think, learn and remember. ब्रेन ही हमारी मदद करता है सोचने में, याद रखने में और सीखने में. Learn means सीखना, remember मतलब उसको याद करना. So brain is the most important thing. ब्रेन हमारे सर के अंदर है. ये हमें सोचने, याद करने और उसको सीखने में मदद करता है. It controls all the organs of the body. ब्रेन ही सारे अंगों को जो कि शरीर में है कंट्रोल करता है. ब्रेन ही सब अंगों को जो हमारे शरीर में है कंट्रोल करता है. So this is the most important internal organ. Here you can see this is the brain. Now what is next? Heart. हार्ट है ये. दिस इज द पिक ऑफ हार्ट.
कीप योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। आपकी चेस्ट के लेफ्ट साइड पर अपना हाथ रखिए। डू यू फील समथिंग बीटिंग लाइक ए ड्रम? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कुछ ड्रम के जैसे बीट हो रहा है? बीट मतलब कुछ बार बार जिस पर चोट होती है। ड्रम क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इतना आवाज़, जोर से आवाज़ तो नहीं आती, बट वी कैन फील दैट मूवमेंट। हमें कुछ महसूस होता है जब हम अपना हाथ लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट के रखते हैं, तो हमें कुछ धड़क धड़क जैसा महसूस होता है। दैट इज कॉल्ड बीटिंग ऑफ द हार्ट। यस, इट इज योर हार्ट। हाँ, ये आपका हृदय है या दिल है। आवर हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो हृदय है वो ब्लड को पहुंचाता है सारे बॉडी के पार्ट्स में। Here you can see, यही हार्ट सारे शरीर के ऑर्गन्स को, जो भी पार्ट्स हैं, वहाँ तक ब्लड पहुँचाता है। अगर ये काम करना बंद कर देगा और या ब्रेन काम करना कर देगा तो हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी। सो ब्रेन एंड हार्ट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। दीज आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं। Yes students, we are discussing about internal organs. We have just discussed very important internal organs. First is brain and second is heart. हमने डिस्कस किया है कि ब्रेन और हार्ट का काम क्या है और वो इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। नाउ नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स का हिंदी में अर्थ है फेफड़े। आई वॉन्ट टू टेल यू स्टूडेंट, सम ऑफ योर ऑर्गन्स कम इन पेयर। आपके कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स पेयर में होते हैं। येस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हमने देखा कि आइज आपकी पेयर में है, आपके ईयर पेयर में है, आपके हैंड्स पेयर में है, लेग्स पेयर में है, बट कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी पेयर में हैं। वी हैव 2 किडनीज, 2 लंग्स। सो लंग्स का क्या काम है, वी विल डिस्कस एंड सी। कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड टेक अ डीप ब्रेथ। अपना हाथ अपनी चेस्ट पे रखो और एक गहरी सांस लो। गहरी सांस मतलब थोड़ी लंबी, थोड़ा जोर से गहरी, जिसमें ज़्यादा समय लगे, ऐसी सांस लो। What do you feel? आपको क्या महसूस हुआ या आप क्या महसूस करते हो? Your chest swells. आपकी जो चेस्ट है वो फूल जाती है। There are 2 lungs inside our chest. हमारी चेस्ट के अंदर 2 lungs हैं। Here you can see 2 lungs. These lungs help us to breathe. ये lungs हमारी मदद करते हैं सांस लेने में। They fill up with air when we breathe in. जब हम सांस अंदर लेते हैं, ब्रीथ इन मतलब सांस अंदर लेना और ब्रीथ आउट मतलब बाहर छोड़ना। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एयर से भर जाते हैं। कौन? लंग्स। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा, आपने योगा वीडियोस देखी होंगी या योगा इंस्ट्रक्टर की बात सुनी होगी, या एक्सरसाइज करते समय योगा टीचर की बात सुनी होगी, या घर में भी सुना होगा कि आप गहरी गहरी सांस लो। कि बाहर खुले में जब आप वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक हो सकती है या इवनिंग वॉक हो सकती है, तो आपको गहरी सांस लेनी चाहिए। वो गहरी सांस किस लिए लेनी चाहिए कि जब हम गहरी सांस लेते हैं हम ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा एयर अपने अंदर फिल करते हैं। हम सांस अंदर लेते हैं तो वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो एक्सरसाइज करते समय और योगा करते समय ये आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि गहरी गहरी सांस लो। ब्रीथिंग का एक जो कॉम्बिनेशन होना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज में। कि आसन को करते समय या कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं और वापस अपनी पहली वाली पोजीशन में आ रहे हैं तो किस तरह से सांस लेनी है आपको। अगर हम अपने लंग्स में ज़्यादा एयर भरेंगे गहरी सांस लेकर तो हम ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे। ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के साथ
हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है। नेक्स्ट इज स्टमक। एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है इंटरनल, स्टमक। वेयर डज द फूड गो आफ्टर वी ईट एंड स्वेलो इट? वो खाना कहाँ जाता है जब हम उसको खाते हैं और निगल जाते हैं? इट गोज इन टू आवर स्टमक। वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक कल भी हमने पढ़ा था एक्सटर्नल ऑर्गन में, जो बाहर का हिस्सा था, बट ये अंदर का जो स्टमक है इंटरनल ऑर्गन में, ये स्टमक देखो इतना सारा इसमें आप कह सकते हैं मैकेनिज्म है, कितने सारे ऑर्गन्स हैं। द स्टमक डाइजेस्ट द फूड वी ईट। स्टमक उस खाने को पचाता है जो हम खाते हैं। अगर हम जल्दी जल्दी खाएंगे तो हमारे स्टमक को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारा स्टमक हैप्पी होगा, और अगर हम अनहेल्दी फूड खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे अननेसेसरी, जल्दी जल्दी खाएंगे, भागते भागते खाएंगे या प्रॉपर तरह से नहीं खाएंगे तो हमारे स्टमक को प्रॉब्लम होगी। सो उस खाने को पचाता है स्टमक जो हम खाते हैं। नेक्स्ट इज बोन्स एंड मसल्स। बोन्स क्या होती हैं? हड्डियां, और मसल्स क्या होती हैं? मांसपेशियां। सो हमारा जो बॉडी है स्टूडेंट्स, वो हड्डियों का ही एक फ्रेमवर्क है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारा शरीर बोन्स से और मसल से बना है। वो बोन्स हमें दिखाई नहीं देते, वो मसल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, बट हमारा शरीर उन बोन्स एंड मसल से बना है। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक अस मूव, रन एंड प्ले। बोन्स और मसल साथ में मिलकर काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इस तरह से काम करते हैं कि हम चल सकें, हिल सकें, भाग सकें और खेल सकें। तो बोन्स और मसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं ताकि हम चल सकें, भाग सकें और खेल सकें। ये हियर यू कैन सी, ये बोन्स हैं और ये मसल्स हैं। हमें बाहर से स्किन दिखाई देती है, बट उसके अंदर क्या होता है? बोन्स होती हैं, बोन्स और मसल्स होती हैं। सो ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क वेल व्हेन वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। सारे हमारे बॉडी पार्ट्स तभी अच्छे से काम करेंगे अगर हम उनकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। देखभाल किस तरह से करनी है? देखभाल किस तरह से करनी है स्टूडेंट्स? आपने सुना होगा बहुत बार कि when we are talking about heart, lungs, brain, stomach, bones and muscles, किस तरह से काम करना है आपको कि हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छी तरह से उसको तरीके से खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और फ्रेश एयर ब्रीथ करनी चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं कि अच्छी तरीके से खेलें, अपनी बॉडी को मूव करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, फिजिकल वर्क ज़्यादा करें। सो ये कॉम्बिनेशन है जो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स का, वही हमारी बॉडी को वर्क करने में मदद करता है। सो स्टूडेंट्स, इफ आई आस्क यू कि नेम सम एक्सटर्नल ऑर्गन्स और नेम सम इंटरनल ऑर्गन्स, आर यू एबल टू रिप्लाई? क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? सो वी हैव डिस्कस्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स यस्टरडे। हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स पढ़े और हमने उनके बारे में थोड़ा डिस्कस भी किया। एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हम देख सकते हैं। हमने कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स को लेबल भी किया। और आज हमने क्या पढ़ा है? वी हैव डिस्कस्ड इंटरनल ऑर्गन्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन इज ब्रेन, then we talked about heart, then lungs, then stomach, then bones and muscles. So we came to know that all our body parts work well when we take proper care of them. हम उनकी देखभाल करेंगे तो हम ज़्यादा एबल होंगे काम करने के लिए, ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। So that was about our chapter number 5. Students, आई एम श्योर कि आपको समझ आएगा। आई एम गोइंग टू सेंड यू अ वीडियो रिगार्डिंग इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो। मैं आपको एक वीडियो भी सेंड करूँगी। सो व्हाट इज़ योर वर्क टुडे?
आपका एक काम है, इट इज़ नॉट अ होमवर्क, कि यू हैव टू रीड दिस पेज एंड यू हैव टू डिस्कस और अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन इन दिस पेज अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स. हमने कुछ डिस्कस भी किया है. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स से भी आप पूछ सकते हैं कि क्या काम होगा या हमें किस तरह से हेल्दी रहने में ये क्या हमें लाइफस्टाइल अपनाना है ताकि हम अपने ऑर्गन्स की देखभाल कर सकें. सो आई एम टेलिंग यू टू रीड दिस पेज. आप इस पेज को रीड करिए. सम ऑफ द वर्ड्स आर माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट when we read these words we will able to understand well. जब हम इनकी रीड करने की प्रैक्टिस करेंगे तब हमें अच्छे से समझ आ जाएगा. So that's all for our EVS class today, students. We will meet in our next EVS class. Till then, students, bye bye. Do read this chapter or do read this page. So thank you so much.